Okay, hello and welcome back. So weekend nearing now, in the sense that Friday. So everybody keenly awaiting probably the weekend. And with one round of CPT is gone, so another round is going to start. So I don't know whether there will be a CPT this week or probably next week, but there will be definitely one or two CPTs before hopefully summer break. Everything is being tagged as hopefully because with the new set of rules in the environment, you never know which rule changes. I can't guarantee anything. Okay? Chalo, some more joining just. Fine, let's start. Actually, I forgot what was the exact last point that we left. Thoda sa maybe. Dhruv has asked a question, and that is CPT के बाद physics class skip क्यों हो जाती है? Actually, it's all management. I don't know how do they make the schedule. पहले तो वो extra class हो जाता था, है ना? और उससे सब एडजस्ट हो जाता था. अब तो वो सीपीटी के बाद वाला एक्स्ट्रा क्लास होता नहीं, अब तो इंग्लिश क्लास हो गया. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है ना? बट आई थिंक इट शुड हैपन इन अ रोटेटिंग बेसिस. कभी एक सब्जेक्ट छूटेगा तो कभी दूसरा सब्जेक्ट छूटेगा. एक आध बार लेकिन मुझे ये भी याद आ रहा है कि मेरे क्लास शेड्यूल किया गया था, फिर वो गलती से अनुज सर आ गए, फिर वो एक कंफ्यूजन हुआ. उनको शायद बताया नहीं गया था कि वो मेरा क्लास था उस दिन. ऐसे भी एक दिन हुआ था. तो these are various situations that happen. हमें ठीक है. चलो anyway, मुझे ना एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा है कि लास्ट कल कहां तक हम लोग. ठीक है, got it. And that is कि सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ डिफाइंड हो, जैसे ये एल लेंथ हो, है ना, और अगर ये चार्ज है और कुछ वेलोसिटी v दे दिया, चार्ज q मास m, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस रीजन में, 0 0. ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में. ठीक है ना? Then what happens? Okay, good morning. Messages are coming. Rohan Nijavan has also just informed कि practical क्या चल रहा था. ठीक है, I got it now. तो like ये जो चार्ज है, अगर मान लो ये जो लेंथ है ये लेस देन r होगा तो क्या होगा? That is the question actually. तो इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ पे भी 0 है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इन दैट केस क्या होगा, नहीं ऐसे ऐसे जाएंगे यहाँ तक और फिर कर्व करके then it will happen like this. So this is now the entry point and this is the exit point. तो ये E हो गया और let's say ये कुछ E dash type. ठीक है ना? So there is an entry point and there is an exit point also. Right? Dharya said sin inverse L by R is the angle of deviation and the angle of deviation is equal to sin inverse R by L. चलो देख लेता हूँ. Let me see. ठीक है ना? अच्छा, in the meanwhile, let me draw the diagram that would have happened had it gone straight. अगर ये straight गया होता तो ये रास्ता फॉलो किया होता. तो इस बार ना दो टाइप के क्वेश्चन बनता है. एक तो ऑब्वियसली वही पुराना वाला, and that is angle of deviation. So this is delta. Find out angle of deviation. This is one question. But there is also another question, and that is lateral deviation. First of all, find out the lateral deviation at exit. So this time there is an additional question that is called as lateral deviation. So let's understand first of all what is the meaning of lateral deviation, isn't it?
तो लेटरल डिविएशन का मीनिंग कुछ ऐसा है, ये देखो, सपोज मैं ऐसे जा रहा था, और तो मैं ऐसे जा रहा था, इसका मतलब क्या कि मेरा रास्ता ऐसे था, बट मान लो किसी वजह से मैं बेंड कर जाता हूँ यूं ऐसे करके, एंड देन आई से, और देन आई आस्क व्हाट इज द लेटरल डिविएशन, तो इन दैट केस आंसर क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेटरल डिविएशन होगा, बट निकालने का तरीका क्या होगा, इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, so these are the different lateral deviations, they are all perpendicular. यहाँ का lateral deviation obviously थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ का और ज्यादा होगा, है ना, so these are the different lateral deviations, means ओरिजिनल रास्ते से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जहां पे पार्टिकल इस वक्त है वो उस वक्त का लेटरल डिविएशन. So my question is also to find out the lateral deviation. So lateral deviation के लिए maybe I can mention some point out here. A, in this case lateral deviation at exit is equal to A. If let's say I can also find out lateral deviation as a function of x, है ना, तो ये question number 1, question number 2, question number 3, find out D as a function of x after exit. ठीक है, after exit and before exit. So maybe I can also ask you what is the lateral deviation out here, है ना, so this is x. तो ये फॉलोइंग चीजें निकालना है. नंबर 1 इज ऑफ कोर्स द डिविएशन, लेटरल डिविएशन ए ई डैश एट द एग्जिट. फिर एग्जिट के बाद अगर लेटरल डिविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, और अगर एग्जिट के पहले लेटरल डिविएशन निकालना है तो क्या करेंगे. सो दीस आर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी पॉसिबली आस्क्ड. लेट्स गो अहेड. कुछ आंसर आ रहे हैं, धैर्य ने दिया, मनन ने भी आंसर दिए हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू देम क्विकली. सो फर्स्ट थिंग इज दैट because the entry that is happening is perpendicular, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि सेंटर यहाँ पे कहीं पे होता है. ठीक है, so this is the center, let's call it as C. क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो एंट्री हमेशा टेंजेंशियल हो, और ये परपेंडिकुलर है तो यहीं पे कहीं सेंटर होगा, एंड देयरफॉर दैट इज द रेडियस. ठीक है, now let's look at the radius itself. तो ये हो गया R, और ये अगर L है तो ये भी L है, तो दिस इज L. अब देखो एक पार्टिकल यूं जा रहा था, उसकी जगह ऐसे जा रहा है, तो लेट मी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल. सो इन दिस केस दिस इज द डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन. तो ये 90 डिग्री है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा, तो उस तरीके से ये हो जाएगा डेल्टा, और ये पैरेलल लाइंस है तो ये भी हो जाएगा डेल्टा. दैट वर्क्स. ठीक है ना, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प मी. तो ये साइन डेल्टा क्या होगा, ये आर हो गया, ये एल हो गया. So therefore the first thing that we're able to find out is that sin delta is equal to L by R, यानी delta is equal to sin inverse of L by R. तो पहला क्वेश्चन जो था एंगल ऑफ डिविएशन वो तो निकल गया, एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो तो निकल गया. ठीक है ना, अगर मान लो पूछा जाए एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर एग्जिट, तब तो यही रह गया, sin delta is equal to L by R. बट अगर मान लो पूछा जाए एंगल ऑफ डिविएशन बिफोर एग्जिट, तब तो एंगल ऑफ डिविएशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एंगल ऑफ डिविएशन बदलता जाएगा. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर, है ना, और ये x हो जाएगा, ये r होगा, है ना, और जो है यहाँ पे टेंजेंट होगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो उसके साथ होगा, यानी क्या होगा x अपॉन r. तो अगर यू नो बिफोर एग्जिट डेल्टा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x by r. ठीक है, एंड आफ्टर एग्जिट delta will be constant, and that is sin inverse of L by R. देख लो अच्छे से. ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। वेरल ने बताया कि लेटरल डेविएशन ए होगा या ए डैश, तो मैंने गलती से ए लिखा था, ऑब्वियसली नहीं। वो तो मैंने बोला ना साइड वाला, तो साइड वाला तो ये होता है ए डैश, ठीक है, दैट्स राइट, वेल पॉइंटेड आउट। तो यानी क्या हो गया, लेटरल डेविएशन एट द एग्जिट क्या होगा, ए डैश, तो ए डैश निकाल, तो वो तो निकल जाएगा आराम से। आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम है ना। जस्ट ओके, लेटरल डेविएशन ऑब्वियसली इज ए डैश, तो अकॉर्डिंगली अगर मान लो मुझे निकालना है तो क्या करेंगे ना, दिस इज आर, दिस इज एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला, और यहां से लेके यहां तक आर है ना, सीई, और मैं भी इसका भी एक नाम दे देता हूँ, सी डी ई एफ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, lateral deviation d is equal to definitely a dash, and a dash can be written as ce minus cf, and ce is r and cf is r minus r square minus l square। देखो देख लो, ठीक है। दिव्यम ना रोज ऑब्जर्व करता है क्या दिख रहा है मुझे। अभी एक सही गेस किया इज दैट कि इट सीम्स कि बोर्ड के बगल में कोई दरवाजा है, आवाज आया होगा। वो एक्चुअली क्या ना, ये जो कपड़े वाला डस्टर है जिससे चौक वो करते हैं, उसको रोज जो है थोड़ा सा पानी से गीला करके सुखा लेते हैं, नहीं तो उसमें बहुत डस्ट है। तो दैट वाज आउटसाइड, ठीक है ना, द बालकनी, तो वही लाया था, तो मेरे ख्याल से आवाज से गेस किया होगा। चलो, अच्छा यू सॉ समथिंग। चलो, मे बी क्वाइट पॉसिबल। चलो एनीवे, d इज इक्वल टू व्हाट ना, r माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, इसमें एक स्पेशल केस आता है, और इंटरेस्टिंगली ज्यादातर क्वेश्चन स्पेशल केस पे आता है, और वो क्या है कि अगर मान लो l वेरी स्मॉल कंपेयर टू r हो जाता है, इफ l इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, और ज्यादातर क्वेश्चन देखना तुमको जब मिलेगा, तुम देख लेना, चेक कर लेना, देखना l वेरी वेरी लेस देन r ही होता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आई कैन राइट e एज इक्वल टू r माइनस, इसमें r कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस l स्क्वायर बाय r स्क्वायर टू द पावर हाफ, so that is equal to r minus r into 1 minus l square by 2r square, तो r कैंसिल करके is equal to l square by 2r, so d will be approximately l square by 2r if l is very very small compared to r। और देखना सरप्राइजिंगली ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है कि अगर l वेरी वेरी लेस देन r तो क्या होगा, वैसे इन जनरल तो ये आ चुका है, दैट्स फाइन, बट दैट्स लाइक मे बी नॉट यूजफुल इन मेनी केसेस, की इसके कैलकुलेशन जबरदस्त हो जाए। अगर मान लो l इज वेरी वेरी स्मॉल तो इसके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन दैट केस वी कैन यूज द सिंपलीफिकेशन, d इज अप्रोक्सीमेटली l स्क्वायर बाय 2r। चलो अब आ जाओ लेटरल डेविएशन। तो लेटरल डेविएशन क्या है, a e डैश, है ना, स्मॉल d आ गया, बट दैट इज ओनली हियर। बट अगर मान लो लेटरल डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, x माइनस l का पीरियड tan डेल्टा लेना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आउटसाइड, अगर देखेंगे तो d क्या आ रहा है ना, इतना तो हो चुका है, प्लस थोड़ा सा और होगा, इतना प्लस इतना, तो ये तो कैलकुलेशन आ चुका है, ये वाला इज इक्वल टू r माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस ये l है, ये यहां से लेके यहां तक x है, तो ये क्या होगा x माइनस l, और ये डेल्टा है, तो ये क्या होगा x माइनस l tan डेल्टा, तो प्लस
x minus l tan delta where delta is given, where sin delta is equal to L by R. तो अगेन अगर मान लो वेरी स्मॉल होता है, so if L is very small compared to R, in that case क्या होगा, D will be equal to, पहली बात तो ये L square by 2R हो गया, ये वाला is equal to L square by 2R plus x minus L into, तो अगर मान लो L very very less than capital R होगा तो in that case sin delta भी tan delta के आसपास हो जाएगा, because delta will be very very small. तो मैं फिर sin delta को tan delta लिख सकता हूँ into, that becomes the complete expression. ये आउटसाइड वाला हो गया, ठीक है ना. आउटसाइड में लेटरल डिविएशन d का वैल्यू क्या होगा, जैसा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए या तो मैं उधर शिफ्ट हो जाऊं, उससे क्या होना, क्वेश्चन ही ढक जाएगा फिर, तो इससे अच्छा यहीं पे बिठा देता हूँ थोड़ा ऊपर, है ना, इतना बिठा देता हूँ. डी इनसाइड रीजन में क्या होगा, बिफोर एग्जिट, तो ये हो गया आउटसाइड. और अब आते हैं इनसाइड. इनसाइड में क्या होगा, ये जो ए डैश है ये एल डिस्टेंस के बाद आया था, तो एक्स डिस्टेंस के बाद क्या होगा, एल को रिप्लेस कर दो बाय एक्स, so therefore it will become d is equal to r minus under root of r square minus x square, and if L is very very small compared to r, then d will be equal to x square by 2r, जो कि L square by 2r लिखा था उसके जगह क्या होगा, x square by 2r हो जाएगा. So that more or less completes the question. ठीक है. इसके बाद एक दो और माइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके बाद जो है एक दो और माइनर क्वेश्चन भी बन सकता है. देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे दिमाग में अब आ रहा था, एंड दैट इज आज बाय अक्षित, एंड दैट इज वो एलएन का टेस्ट सीरीज का क्या होगा. वैसे एलएन का टेस्ट सीरीज ना हर साल जून में स्टार्ट होता है, सॉरी जुलाई में स्टार्ट होता है 12th वाला, तो आई होप कि हो जाना चाहिए. वैसे तो देखो एलएन वाला तो आई डोंट थिंक इज अ मेजर इशू, व्हाई, बिकॉज़ दे विल डू इट ऑनलाइन आल्सो, है ना, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर इशू. इट्स जस्ट दैट लेट मी सी, ये वैसे आइडिया सही दिया है, और मे बी आई विल जस्ट आस्क द कंसर्न्ड पीपल टू रिवर्ट बैक, क्योंकि मेरे दिमाग में स्किप हो गया था. टेस्ट सीरीज तो खैर इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि तभी जाके वो एक बेंचमार्किंग पता चलेगा. अदरवाइज तो यू आर गोइंग ऑन प्रिपेयरिंग, लर्निंग, क्लास, होमवर्क, असाइनमेंट, बुक्स वगैरह सॉल्व कर ही रहे हो, दैट इज ऑल डन. बट यस आई अंडरस्टैंड टेस्टिंग इज इंटीग्रल. इनफैक्ट इसीलिए हम लोगों ने देखो इतना अजीबोगरीब तरीके से सीपीटी स्टार्ट कि वीडियो के सामने बैठो, पेरेंट को बैठाओ, ये करो वो करो, 1 मिनट का विंडो, है ना. अभी उसको और फाइन ट्यून करने की कोशिश किया जा रहा है, अभी भी सोचते रहते हैं क्या कर रहे हैं बेटर. इनफैक्ट इफ यू हैव सम सजेशंस यू कैन गिव अस, सीपीटी को और बेहतर और ऑथेंटिक और बेटर, whatever way it can be done. I mean, if there are some good suggestions, you can definitely give. ये हम लोगों ने इसको जो है डिस्कशन करके लगभग इस प्लेटफॉर्म पे लाए. So let's say if there are some good suggestions, and you never know where the mind can work, technology this that. कई बार हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग भी उतना अप टू डेट नहीं है, and let's say you are aware of it, quite possible, ठीक है ना. अब उसमें लूप होल्स भी शायद होंगे, तो like we will look at both sides of it, and then let's see if there are some possibilities of enhancing the quality of the CPTs and also the quality of the testing process. Why not? I mean, it's a new platform, new ideas are most welcome, है ना. ओके, लक्ष्य वाज आस्किंग कि कुछ डाउट वगैरह का कुछ रख लेते हैं प्रोविजन. वैसे डाउट के लिए तो मैंने देखा कि मुझे जनरली 2-4 बच्चे मैसेज करते रहते हैं, और जनरली मैं 1-2 दिन में आंसर कर ही देता हूँ, तो यही जनरली प्रोसेस चल रहा है, अभी तक तो यही चल रहा है ना. बाकी इन व्हाट फॉर्म यू वांटेड आउट क्लास, मतलब एक्चुअली वैसे टाइम कम मिलता है इस फॉर्म में, क्योंकि एज यू नो, तो देयरफॉर इफ यू वांट डेफिनेटली वी कैन. तो लाइक किस तरीके से चाहते हो, कुछ सजेशंस है तो बताओ. ओके, जैसे अक्षित बोल रहे हैं कि सैटरडे रख लो. देखो अलग से क्लास रखने में दिक्कत ये कि एवरीबॉडी मे और मे नॉट बी इंटरेस्टेड, कहीं का वीकेंड और भी क्लासेस होते हैं, फिटजी वगैरह इस तरीके का. चलो ठीक है, वो देखता हूं मैं, हाउ मच इट इज फिजिबल. और कोई और क्या दिमाग में है.
वेदांता सेट की 9 to 10 ये हमें भी पता है, 9 to 10 के में गूगल फॉर्म में टेस्ट हो रहा है, बट देन उसमें पता क्या है कि द चाइल्ड इज नॉट विजिबल, सो देयरफॉर आई मीन वो घर में ही जो साइंटिफिक हो सकता है, तो दैट इज द ओनली कंसर्न। आई मीन अदरवाइज हमने ये बात किया था, बल्कि उसमें हम लोग के लिए ज्यादा आसान, क्यों? क्योंकि उसमें करेक्शन भी गूगल खुद ही कर देता है। ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, नो टाइम, नथिंग लाइक दैट, है ना। ओके, एक टेस्ट में मेरा पूरा प्रोग्रेस 2 बार रीसेट हो गया था, जय गोयल इज सेइंग। सो सी देयर आर इश्यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मैं समझ सकता हूँ, है ना। शिवम से चीटिंग अगर हो रहा हो तो उसमें भी होगा, या आई अंडरस्टैंड। रोहन से कि वो तो अपने इंटीग्रिटी की बात है, अगर विजिबल नहीं है वीडियो। अनिरुद्ध से हाँ बिल्कुल सही बोला है। आई अंडरस्टैंड, बट देखो, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर हो रहा है तो एटलीस्ट एक एफर्ट तो होना चाहिए ना, कि यू नो सी, आई अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी अ बेसिक ट्रस्ट, लेकिन देखो इतना सारा बेसिक ट्रस्ट के बाद अभी तो ये तो चलो ऑनलाइन मीडियम में, और इवन ऑफलाइन में भी जैसे स्कूल में हर साल देखा होगा कि कितने बच्चे पकड़े जाते हैं, फिर उसका जो टॉयलेट होता है उसमें किताबें मिलते हैं, कई बार नोट्स मिलता है। है ना। कई बार देखना कि 2 रूम से एक ही टाइम पे बच्चे निकलते हैं जानबूझ के वॉशरूम की तरफ, तो वो टाइमिंग्स करके रखते हैं पहले से। या देखा होगा कि एक जब निकलता है और वो किसी कॉरिडोर से दूसरे रूम पार करता है, तुरंत दूसरा बंदा भी सर मुझे जाना है वॉशरूम। तो इस देखो, आई मीन दैट इज लाइक 2-3% आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी उसके लिए भी तो 100% को निगरानी रखा जाता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो तुम लोगों का जो टेस्ट होता है हाफ ईयरली वगैरह इस तरीके से, उसमें इन्विजिलेशन की जरूरत ही क्या बताओ। है या नहीं? चलो एनीवे कोई बात नहीं। चलो एनीवे ठीक है ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आई मीन एक तो वो एलन वाला, और एक देखते हैं डाउट वगैरह इस तरीके से कुछ, है ना, दैट इज देयर। बट व्हाट आई वुड ऑलवेज वेलकम इज दैट, क्योंकि देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम लोगों के स्कूल वगैरह चलता था तो हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, इन द सेंस कि सारे एक्टिविटीज इतने से थे। अब क्या होगा ना, क्योंकि घर में है तो लाइक वो ट्रैवलिंग का टाइम कम हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स, सो लाइक व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सेंड डाउट्स एंड ऑल। कई लोग भेज भी रहे हैं, तो कई बार कुछ कुछ किया भी है, कुछ आई डोंट नो, एक आध इनकम्प्लीट है तो आई डोंट नो, और मोस्टली सब डाउट क्लियर भी हो गया मोस्ट। तो लाइक बी एक्टिव ऑन दैट, सेंड डाउट्स एंड देन वी विल डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लक्ष्य ने एक भेजा है, कल ही शायद भेजा है, कि एक नोडल मेथड से कैपेसिटर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कल तो टाइम नहीं मिला, आज मैं कर दूंगा उसको, अभी सैटरडे संडे भी है, तो मैं भी सोच रहा था चलो ठीक है वीकेंड में देख लेंगे। नोडल मेथड से सिर्फ रेजिस्टेंस का नहीं, कैपेसिटेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो लक्ष्य सेंड ए क्वेश्चन फॉर कैपेसिटेंस नोडल मेथड्स, तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स प्रोसीड। कुछ रह गया इसमें, ठीक है, ये तो ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, next question is like this that okay, the next question is based on target practice actually. So this is a very easy question, पहले मैं easy से start करता हूँ। This is Q M, और यहाँ पे एक टारगेट T है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है T। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है एज यूजुअल, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्रॉस। अब यहाँ पे ना लाइट पड़ता है इस रीजन में, जिसको ऐसे दिखना मुश्किल होता है। चलो एनीवे, क्वेश्चन इज दैट you are not allowed to hit the target directly. So what you have to do is that you have to release this charge with some speed so that it goes and then hits the target. तो इसका स्पीड पूछा, we required to hit the target. तो this is a relatively easy question, क्यों? क्योंकि इसमें तो वो डायमीटर से आ जाए, है ना। तो पहले इसका आंसर निकाल लो, तब तक मैं देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, दैट इज द मेन क्वेश्चन, एंड दैट इज, इस बार पूरे रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लो यहाँ पे कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे टारगेट,
यहाँ पे मान लो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे टारगेट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। द क्वेश्चन इज कि v वेलोसिटी से अगर वो करना है ना, तो क्या रखा जाए टू हिट द टारगेट, ठीक है ना, टू हिट द टारगेट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चार्ज और मास वगैरह दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है, 2 और फिर एक मैं थर्ड भी देने वाला हूं। मनन डंगवाला से गुड थिंक सजेशन है, दैट इज क्लास के ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया करो, नो इश्यूज, है ना, नो इश्यूज। बस उसमें एक ही दिक्कत आता है कई बार कि जैसे कुछ ग्रुप में इंपॉर्टेंट मैसेज अगर ऑफिशियल आता है तो वो कई बार स्किप हो जाता है, दैट्स लिटिल ऑफ प्रॉब्लम, बट ठीक है, अनलेस द ग्रुप इज टोटली क्लटर्ड, आई मीन आई थिंक इट्स ओके, you can discuss amongst yourselves also, and then somebody could chip in that case as well, that is also a possibility, no issues, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, एंड दैट इज ये सेम वही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, चार्ज को ओरिजिन पे रिलीज किया गया है लेकिन किसी एंगल पे रिलीज किया गया है, थीटा। अब पूछा जा रहा है किस वेलोसिटी से रिलीज किया जाए कि टारगेट हिट हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी, 2 मैसेजेस आए हुए ऑलरेडी, बट आई एम श्योर आ गया। मनन है सेट कि पहले वाला तो क्यू बी डी बाई 2m, ठीक है, आई थिंक पहले वाला तो बहुत आसान था। Abhik says, can we make another group for doubts? See, that's up to you if you want to make the group. But my only concern is groups इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कई बार ना वो ट्रैक रखना ही मुश्किल हो जाएगा। That's the only problem. अच्छा देखो, इसमें जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो तो बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ट्रेजेक्टरी जो बनेगा, oh, somebody still waiting. जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो बनेगा ऐसे, यूं ऐसे, तो यानी बेसिकली डायमीटर होना चाहिए, सिंपल। So therefore I can say that d by 2 will be the radius, and that is equal to mv by qb, है ना, mv by qb, बस वेलोसिटी आ गई, implies v is equal to q bd by 2m, ठीक है। पहला तो was straight forward direct answer type question, so there is nothing in that. दूसरे में जय गोल ने आंसर दिया है, ठीक है, दूसरे में r is equal to x square plus y square by 2y। क्वेश्चन नंबर 2 में x एक्सिस पे b 0 है क्या? बिल्कुल। दूसरे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग लॉन्च किया गया, सो लाइक इट विल गो एंड देन हिट द टारगेट, ऐसे कर, है ना। और इसमें भी ऐसा है लेकिन इसमें थोड़ा एंगल पे स्टार्ट किया, बस इसमें और इसमें अंतर ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ, तो ये ऐसे करके यूं ऐसे जाए, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो इसका कर लेते हैं पहले। देखो इसमें इतना तो पता चल गया कि इसका जो सेंटर होगा वो लेट से यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना, तो ये भी रेडियस r होगा और ये भी रेडियस r होगा। ये मैंने 90 डिग्री नहीं बोला, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री कोई जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, ये जस्ट अ लाइन है कि ये अगर सेंटर हुआ तो ये रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो देखो क्या होगा, दिस विल बिकम y माइनस r, ये इतना पार्ट, और ये हो गया x। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा,
y minus r whole square plus x square is equal to r square. ठीक है ना? तो r square तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2ry है ना, 2ry is equal to x square plus y square, यानी y is equal to x square plus y square by 2r, या r लिख देता हूँ as 2y. But we know that r is equal to mv by qb, है ना? तो फाइनली फिर v कितना आ जाएगा, qb into this by m, so therefore it is equal to, implies v is equal to qb into x square plus y square by 2my, है ना? Yeah, qb into x square plus y square by 2my. इसमें मास वगैरह भी चेंज है, तुमने क्या किया, शायद r निकाला है मुझे, यू हैव फाउंड आउट r. एक्चुअली क्वेश्चन वाज कि v कितना है, तो ठीक है, वो r को इक्वेट करके आ जाएगा, इट्स ओके, डन, नो इशू. ठीक है, हो गया. अब आ जाओ थीटा वाले पे. नाउ सॉल्व दिस थीटा वाला क्वेश्चन. वैसे अगर देखा जाए, अगर इसको पहले किया होता तो शायद इसको करने की जरूरत नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसी में थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दे तो ये क्वेश्चन बन जाता. बट एनीवे, कोई बात नहीं, वी आर बिल्डिंग वन स्टेप एट ए टाइम, नो इश्यूज विद दैट, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. नाउ लुक एट दिस. I think I can remove these, I mean. Okay. Now let's start. The thing is that ये जो इस बार सेंटर होगा ना, वो इधर कहीं होगा. तो लेट्स से ये r, तो ऑब्वियसली ये भी r होगा, है ना? ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा. तो अगेन मैं एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉप करता हूं और यहां से भी एक लाइन ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ध्यान रखना. तो अगर देखा जाए तो ये तो y हो गया, है ना, और ये हो गया r cos थीटा, isn't it? क्यों? ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा r cos थीटा होगा. रिमेंबर, दिस इज r and this is also right. और जो है ये पूरा r cos थीटा और ये y, so this one will become
आर कॉस थीटा माइनस वाई। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। दूसरी बात है कि ये जो है ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये पूरा है आर कॉस थीटा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक्चुअली कंजेस्टेड हो रहा है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये पूरा आर कॉस थीटा हो गया और ये वाई है तो ये बन गया आर कॉस थीटा माइनस वाई, इतना पार्ट। ये आर साइन थीटा है और ये एक्स है, दिस एक्स। तो ये कितना हो गया फिर, ये हो गया एक्स प्लस आर कॉस थीटा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा। अच्छा माइंड यू, थीटा इज नॉट अननोन, थीटा इज नोन, वी अननोन, ध्यान रखना। तो आर कॉस थीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं, तो इसमें से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें से एक आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जिससे कि आर स्क्वायर बनेगा और वो आर स्क्वायर यहां से कैंसिल। तो बचेगा क्या, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r तो ले लो कॉमन, ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ठीक है, एक्स प्लस आर साइन। तो ये हो जाएगा वाई आर कॉस थीटा, ठीक है ना, और एक्स आर साइन थीटा। अच्छा आर तो कॉमन ले लिया, एक्स साइन थीटा ये आएगा, यानी आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन। ठीक है, सो द होल लास्ट क्या है, यानी v इज इक्वल टू क्यू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2m इंटू वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन। ठीक है ना, तो देख लो बच्चे। हाँ ठीक है, वेदांत ने सही पॉइंट आउट किया था, इज दैट ये मैंने गलती से आर कॉस थीटा लिखा था, तो ठीक वो मैंने भी देख लिया बाद में। तो लाइक ये आंसर आ गया। अच्छा अब देखो, मैंने तो ये बोला था कि अगर इसको सॉल्व कर लिया तो समझ लो ये भी हो गया, तो इसमें थीटा इक्वल 0 पुट करना, अगर मैं इसमें थीटा 0 पुट करता हूँ तो cos थीटा 1 हो गया और x sin थीटा वाला पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई y। ये देखो y आ, बाकी तो देखो सब कुछ सेम है, q भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये देखो 2my। अब देखो 2m इंटू ये पूरा है इस केस, यहाँ पे थीटा 0 पुट कर दूंगा तो sin थीटा वाला टर्म खत्म, ये 1 तो y रह गया, तो y आ गया। Like from this we can also confirm about the validity of this। ठीक है, इन द मीनवाइल कुछ कुछ आंसर्स आए हैं, मनन से आया है, जय से, अक्षित ने भी दिया है। अक्षित ने आस्क किया आर साइन थीटा आया कहां से। हाँ वो यहां से आया ना, ये देखो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा आर साइन थीटा, और ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ही है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये तो x हो गया, ये आर साइन थीटा, तो ये पूरा जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा x प्लस आर साइन, ये वाला पूरा लाइन, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है ना, दैट वाज अबाउट योर हिटिंग द टारगेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लाइन भी आ जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि once you know the values of r this that everything, तो उससे क्या होगा पता है कि अब तो वेलोसिटी पता चल चुका है,
तो वेलोसिटी अगर पता चल चुका है तो टाइम कैसे निकलेगा ना, बस मुझे इसके लिए ये वाला फाई चाहिए, है ना। तो अगर मान लो सपोज पूछता हूँ कि कितने वेलोसिटी से हिट करना पड़ेगा सो दैट इट हिट्स द टारगेट, मतलब कितने वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा इस वाले में टू हिट द टारगेट, और एक और क्वेश्चन है कि कब टारगेट को हिट करें, तो दैट्स ओके। तो इसके लिए क्या होगा, मुझे ये वाला फाई चाहिए, है ना, और उसके लिए tan फाई क्या होगा, tan फाई विल बी दिस बाय दिस, है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो tan फाई विल बी दिस बाय दिस, उससे फाई आ गया, और r फाई बाय v, ये स्पीड तो चेंज होता नहीं है, ये स्पीड जाके ऐसे करके हिट करेगा ऐसे करके। तो अगर मान लो टाइम पूछा जाए तो टाइम आ जाएगा t इज बेसिकली इक्वल टू r फाई अपॉन v, है ना, नहीं फाई भी नहीं, इनफैक्ट फाई माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल नहीं, सॉरी ये वाला एंगल कवर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये जो एंगल है इसको मैं फाई लिख देता हूँ, ठीक है ना, बट देन इसको फाई लिखने में दिक्कत आएगा, फाई तो उतना ही रहने दो, बस ये कि मुझे ये वाला एंगल कवर करना, so this will be equal to phi minus theta, तो therefore t हो जाएगा arc length which is r into phi minus theta, ये पूरा एंगल को फाई लिया मैंने, ये थीटा है तो ये हो गया फाई माइनस थीटा, तो दैट्स इट। अब फाई कैसे आएगा, वेयर थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, फाई निकालना है, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस, तो यानी x प्लस आर साइन थीटा बाय r cos थीटा माइनस 1, दैट्स इट। एक बार देख लो, इज दैट कंफर्टेबल सर? हाँ सर वो राइट में माइनस एक्स साइन थीटा नहीं आएगा? अच्छा हाँ ठीक है ठीक, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक माइनस आएगा, हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है फाइन, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो उससे उधर कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हुआ तो वहां तो ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो x प्लस आर साइन थीटा और r cos थीटा माइनस वाई, ठीक, फाई आ गया, फाइन, तो ये टाइम कितना लगेगा इसको हिट करने में, वो भी निकल गया, ठीक, इन टर्म्स ऑफ नॉन वेरिएबल्स, फाइन। कार्तिक आजाद की टी कैसे आ रहा है, टी के लिए तो मैंने बोला ना कि ये वाला आर्क लेंथ चाहिए, अब देखो अगर मैं और ड्रॉ करूंगा तो कंजेस्टेड हो जाएगा, बट चलो अब जब पूछ रहे हो तो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, बट एक्चुअली बहुत कंजेस्टेड हो जाता है ये वाला, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक्चुअली बेसिकली मुझे ये वाला आर्क लेंथ चाहिए, ये वाला, तो उसके लिए ये एंगल चाहिए, और ये पूरे को मैंने फाई लिया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो उससे फाई निकाला, है ना, और ये थीटा है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला, विच इज फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, बस फाई निकाल लिया tan इनवर्स के फॉर्म, दैट्स इट। एक्चुअली यू नो व्हाट अनिरुद्ध इज आस्किंग इज दैट, अगर मान लो थीटा बड़ा होगा फाई छोटा होगा, इस तरीके से भी तो हो सकता है, एक्चुअली ना वो ना सारा मैथमेटिकली एडजस्ट हो जाए, डोंट वरी ऑन दैट, क्योंकि देखो ये पॉसिबिलिटी तो है इजीली कि हो सकता है कि ये पॉइंट ऊपर हो, तो इन दैट केस तो ये पॉइंट वहां आ गया, तो वो ना थीटा ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, क्योंकि हमने जो ये लिया है ना, जैसे हमने ये लिया r cos थीटा माइनस वाई, ठीक है ना, हमने तो ये लिया r cos थीटा माइनस वाई, और अगर मान लो ऊपर चला जाएगा, थीटा बड़ा हो जाएगा या कुछ थीटा और ज्यादा कर लो, तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप एडजस्ट होगा, सो डोंट थिंक, डोंट यू नो वरी ऑन दैट, वो मैथड, ये सब मैथमेटिकल पैरामीटर्स है, और वो अपने आप साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन से एडजस्ट कर करके सॉल्यूशन, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी टू मच ऑन दैट, ठीक है ना,
चलो, so like let's move on then. रोहन से इसकी इसको काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रॉब्लम इज दैट काइनेमेटिक्स से करोगे भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो हमेशा जो है रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेस्ट टू यूज सर्कुलर मोशन कंसेप्ट, और ऊपर से स्पीड बदल नहीं रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है। तो काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा और क्या मेथड यूज करें? वो एक्स वाई जेड वाला मेथड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वाई के अलॉन्ग भी वेरिएबल है, और हर जगह पे अलग अलग, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं पता मुझे फिलहाल, तो हर जगह पे अलग अलग होगा, तो दैट्स लिटिल मोर डिफिकल्ट टू रिकंसाइल, ठीक है ना। इसलिए जो है प्लेन सर्कुलर मोशन से कर दिया कि आर्क लेंथ अपॉन स्पीड इज द टाइम, दैट्स समथिंग बेटर आल्सो, प्लस कंप्रेस सॉल्यूशन भी है, दैट्स बेटर। So let's move on now. अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था that was more or less about charge. तो इस चैप्टर में एक्चुअली दो पार्ट्स है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3-4 पार्ट्स है, बट अगर फोर्स देखा जाए तो उसमें दो पार्ट्स है। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था चार्ज, बट लेट्स से दिस सेम चार्ज आल्सो माइट मूव इनसाइड ए कंडक्टर। तो लेट्स से ये कंडक्टर और उसके डीएल लेंथ पे सपोज ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, और उसका मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है विद सम वेलोसिटी व्हिच वी जनरली कॉल एज व्हाट, जेट वेलोसिटी, दैट्स व्हाट द वेलोसिटी इज। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस पे क्या फोर्स लग रहा है ड्यू टू सम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होना कोई जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट एक सैंपल ले रहा हूं मैं, बट देन लेट्स से सम मैग्नेटिक, तो हम कैसे करें? देखो फोर्स का जो इक्वेशन है वो तो मुझे पता है, Q इंटू V क्रॉस B। तो अगर इस वक्त मैं इस डीएल लेंथ पे, अगर मैं इस वक्त इस डीएल लेंथ पे फोर्स देखना चाहता हूं, इन दैट केस क्या होगा? Q क्या होगा? द नंबर ऑफ चार्जेस इनटू ईच चार्ज, तो ये क्या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, या चलो पहले वॉल्यूम वाला पहले कर लो, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम into A into DL is the volume. The number of charges per unit volume into volume is the total number of charges. Into E कर दो, तो in that case यार ये तो हो गया Q into VD क्रॉस B। अच्छा, इस कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा, इज दैट सपोज कल को आ जाता है let's say some vector cross product, ठीक है। तो what I can do is that सपोज क्वेश्चन आ जाता है 4 into 5 i cap क्रॉस सम, या चलो ठीक है 5a है ना क्रॉस b। थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सपोज क्वेश्चन आता है फाइंड आउट 4 into 5a क्रॉस b, सपोज आ जाता है कल को क्वेश्चन। Can't I write it as isn't it? तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट हियर आल्सो। आई एम सेइंग कि VD के डायरेक्शन में DL वेक्टर डिफाइन करते हैं, यानी यहाँ पे मैं लेंथ को टेम्पोरली एज अ वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जस्ट एज वी हैव डन इट इन टेम्पोररी इन गॉस लॉ। एरिया को टेम्पोरली हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया कि परपेंडिकुलर होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, या अगर गॉस लॉ में यूज कर रहे हो तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द आउटसाइड द वॉल्यूम होगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें भी ऐसे कर रहा हूं मैं इसको लिखना चाहता हूं NAEVD, इसको तो रख लो यहाँ, और VD के डायरेक्शन में एक DL वेक्टर डिफाइन कर लो, तो दैट केस फायदा क्या हो गया DL क्रॉस। नाउ यू माइट सी ये मैनिपुलेशन क्यों किया, तो दिस मैनिपुलेशन दैट आई हैव डन इज सिमिलर टू दिस। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो VD का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में DL वेक्टर डिफाइन करता हूं, यानी DL इज अ डिफाइंड वेक्टर, क्योंकि लेंथ तो वेक्टर होता ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर लेंथ को अगर वेक्टर डिफाइन करो तो इट हैज टू बी टेंपोरली ओनली, बट ठीक, आई डोंट माइंड। तो देयरफॉर अच्छा, क्योंकि ये फोर्स स्मॉल है, तो देयरफॉर DF
will be equal to I into DL cross B. देखो जैसे दोबारा सेम रिलेशन डिराइव नहीं हो जाएंगे। एक्चुअली क्या ना, देखो अभी तक हमने जो किया था ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज हमने ही किया, और अभी भी लगभग वही कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है कितने चार्जेस है, उसमें क्या चार्ज है एक एक में, फिर बाकी तमाम चीजें वो सब कर रहा हूँ। देखो यही सब, तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ई, तो टोटल चार्ज आ गया क्यू, फिर वीटी क्रॉस बी, वो सब कर रहा हूँ, सो दैट आई गेट द आंसर। यानी जो फोर्स आएगा वो आएगा आई डीएल क्रॉस बी। सो ऑब्वियसली अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने एक डीएल वेक्टर डिफाइन किया, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर का जो स्पेसिफिकेशन है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल टू लेंथ, मैग्नीट्यूड तो इक्वल टू लेंथ, और डायरेक्शन क्या होगा, एज पर करंट, डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज current. Now that is the significance. Significance is that if I ask you what is the DL vector for, let's say, long wire but curved, तो अगर मान लो कोई वायर ऐसे है तो L वेक्टर हो गया, नो इश्यूज, ये एक ही डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर कोई वायर ऐसे है तो देयर इज नो सिंगल L वेक्टर, फिर क्या होगा, फिर हमें छोटे छोटे वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। ये हो गया छोटा सा DL वेक्टर, यहाँ पे ये छोटा सा DL वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये छोटा सा DL वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये छोटा सा DL वेक्टर हो गया, एंड सो ऑन। देख लो, ठीक है, देख लो। अक्षयदास की वो डीएल वेक्टर को स्वैप ना करके वीडी को ही रहने देते हैं। एक्चुअली मैं ना करंट का एक इंडिपेंडेंट एनडीटी चाह रहा था, अगर वीडी को स्प्लिट करके उधर डाल दो ना, फिर ये करंट का एक्सप्रेशन नहीं बन पा रहा, इसलिए मैं वीडी को इधर कर लिया, डीएल को उधर कर, तो क्या होगा, इससे पूरे करंट का एक्सप्रेशन बन गया। See, this is just manipulation to bringing a certain desired result. ये तो हम करते ही रहते हैं, बाकी जगह पे भी किए होंगे, मैथ्स में तो इतने बार किए, फिजिक्स में तो फिर भी थोड़ा कम करते हैं, है ना, बट जहां जरूरत हो वहां करते हैं। ये बीच में जो म्यूट कैसे हो जाता है वैसे अभी एक दो कॉल्स आ रहे हैं, आई डोंट नो कॉल के टाइम म्यूट ना हो जाए। अब ठीक है, आवाज आ रहा है या नहीं? सर आ रही है। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, कॉल आते ही क्या गड़बड़ हो जाता है, आई डोंट नो। सर अब आ रही है। अब तो आ रहा है, ठीक है, अब तो आ रहा है। चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो लाइक हाँ, तो यानी क्या होगा, इसके लिए कोई सिंगल डीएल वेक्टर नहीं होगा, इन दैट केस छोटे छोटे टुकड़े में डीएल 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 करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट द आंसर। जैसे maybe we can start with a simple question, and that is, suppose मैं कहता हूं कि ये x एक्सिस y एक्सिस है और एक वायर का टुकड़ा है यहाँ पे, एक वायर का टुकड़ा यहाँ पे, और उसको यहाँ पे हिंज कर दिया, हिंज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड वो वेरिएबल, एंड दैट इज इक्वल टू बी नॉट एक्स स्क्वायर सपोज, और इसका वायर का लेंथ एल है, और यू नो माइनस के कैप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ एल है, और मान लो करंट आई।
नाउ यू माइट से ये कटा हुआ वायर कैसे हो सकता है? देखो ये वायर कटा हुआ नहीं है, वायर कटा हुआ। सर आप म्यूट होगा। सर अब दोबारा म्यूट हो गया सर। सर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है ये चीज क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो देन यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली। अदरवाइज जस्ट अभी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो देन यू विल हैव अ बेटर फील। एक बार रिपीट कर दो, आप म्यूट हो गए थे। फिर से म्यूट हो गए थे? अरे हाँ पूरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है ठीक है। इससे अच्छा मुझे लगता है ना कॉल जब आता है ना तब म्यूट हो जाता है, मुझे लगा ऑटोमेटिक। 2-3 ना कॉल्स आया अभी, चलो देखते हैं। हाँ तो लाइक दिस इज द वायर ऑन द एक्स एक्सिस, इसका लेंथ एल है, इसमें आई करंट है और मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है बी नॉट एक्स स्क्वायर और क्रॉस है यानी अंदर की तरफ जाता है। तो दोस आर थिंग्स यू टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स ऑन द वायर, टॉर्क ऑन द वायर एंड आल्सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? तो लाइक गो अहेड। अच्छा लेट्स स्टार्ट अभी। फोर्स तो इंडिकेशन से आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो आई एल क्रॉस बी से सीधा निपटा दिया होता, बट क्योंकि वेरिएबल है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, तो यानी ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स डिस्टेंस दूर छोटा सा एक सेक्शन ले लेता हूं, ये वाला, एंड दैट इज लेट्स से डीएक्स। तो इस पे फोर्स क्या आएगा, आई डीएल, तो डीएल तो डीएक्स हो गया, इनटू बी इनटू साइन 90 डिग्री। और ये सारा फोर्स जो है वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो डीएल 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 डीएल, तो सारे डीएल तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन सेम हर जगह ऐसे ऐसे, है ना, इनटू द बोर्ड। तो डीएल क्रॉस बी फोर्स ऊपर आ रहा है, तो यानी हो गया जे क्या। तो फोर्स तो आ गया इंडिकेशन का, कहां से कहां तक, 0 to L। तो ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो आई बी नॉट एल क्यूब बाई 3। तो साइन 90 तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइक दोस आर डन थिंग्स। तो आई बी नॉट एल क्यूब बाई 3 इज द फोर्स। ध्यान से देखो, सर आप फिर म्यूट हो गए हो सर। म्यूट हो गए हो। सर एक्सक्यूज मी सर सर। लिसन, अब तो ठीक है ना? सर सिम बंद कर। हाँ नॉट डिस्टर्ब पे लगा लो। एक ये मुझे लगता है ना
हाँ बिल्कुल सही है, लक्ष्य has given the right answer. ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन की ऑडियो लैपटॉप से चला दो और उसका ऑडियो ऑफ कर दो। हाँ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, मैं वही करता हूँ। एक सेकंड। चलो, इज इट ओके नाउ? अब तो ये दूसरा टाइप का इको आ रहा है और इसमें तो इको आ रहा है, इसमें दिक्कत है। वो एक्चुअली ये रिसीवर बन रहा है ना, वो एक्चुअली क्या ना, ये रिसीवर बन रहा है तो उसमें इको बहुत आ रहा है ना। ये अनिरुद्ध, व्हाट डू यू डू समटाइम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या भेज रहे हो अभी, लंबा सा कुछ मैसेज? हाँ तो लाइक जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3l/4, तो पहले तो इसका सॉल्व करके आ जाएगा I B0 L4/4, ये देखो। So I B0 L4/4 will be the torque. एक्चुअली देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो इमेजिनेशन है वो पता क्या है, कि यहाँ पे जो फोर्स बन रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कम 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 फोर्स, यहाँ थोड़ा ज्यादा फोर्स। क्यों? क्योंकि एक्स बढ़ता जा रहा है तो बी बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स के अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे होगा शायद कि यहाँ का डीएफ ऐसे होगा, 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 इस तरीके से बनेगा, है ना। लेकिन मान लो जो टोटल फोर्स है विच इज दिस, अगर मान लो मैं एक सिंगल जगह पे लगाऊं, सिंगल जगह पे, और टॉर्क उतना ही बने जो कि इन सब के वेरिएबल के या अलग अलग तरीके से बन रहा है, तो वो जो सिंगल वाला जगह है, उस सिंगल वाले फोर्स के लिए, सिंगल वाला कौन सा फोर्स, ये वाला टोटल फोर्स, तो दैट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे इस केस में अगर हम देखते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन का क्या रिलेवेंस होगा, इज दैट सपोज मैं कहता हूं कि x डिस्टेंस दूर, पता नहीं कौन सा डिस्टेंस है, तो ठीक है ना। सपोज मैं कहता हूं कि कुछ एक डिस्टेंस दूर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है L, नहीं L तो ऑलरेडी कुछ D ले लेता हूं। तो दिस इज सपोज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना है, I/0 L3/3, तो यानी जो टॉर्क आएगा दैट विल बी I/0 L3/3 इनटू डिस्टेंस D। ये टोटल फोर्स को एक सिंगल जगह पे लगाना, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग एट वेरियस पॉइंट्स, so into D will be equal to I/0 L4/4, यानी I/0 L4/4, यानी D will be equal to, बिल्कुल सही, दो तीन जनों ने एकदम सही आंसर दिया है ना। दैट्स इट, फाइन, देख लो अच्छे से। यानी D is equal to what ना, 3l/4। ओके, हाँ ठीक है, कईयों का आंसर सही आया है, फाइन। शिवम एंड अनिरुद्ध, व्हाट इज दिस? अब वो कुछ भेज रहे हैं, ये बोल रहे हैं थैंक्स, तो ये सब बेटे क्लास के बाहर करो, नॉट विद इन द क्लास। ग्रुप में भेज दो, यू नो डिस्कस देयर और व्हाटएवर, आई डोंट नो रेलेवेंट इररिलेवेंट क्या है, बट प्लीज डोंट डू इट विद इन दिस फोरम। ठीक है, चलो। सो लाइक दैट वाज अबाउट one single force acting as some kind of a resultant at a single point, so that it acts as a replacement of this variable forces acting at different points. Okay, so that's why it is being called as line of action of force, which is some kind of an effective point where the force can be imagined to be acting, where the entire force can be imagined to be acting. ठीक है ना, चलो ठीक है। So this being now the status, I mean, we will continue tomorrow. इसमें एक स्पेशल केस भी आएगा कि जैसे हमने बोला कि इसका कोई L वेक्टर नहीं होता,
मींस इसका कोई सिंगल एल वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि डीएल 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 क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए एल वेक्टर होता है, बट अगर कर्व्ड होगा तो इन दैट केस कोई सिंगल एल वेक्टर नहीं होता है, तो इन दैट केस छोटे छोटे पोर्शंस के डीएल 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 डीएल। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन भी है, इन द सेंस कि sometimes we are also able to do a single L even in this kind of a setup also, ठीक है ना? But anyway, those are things that we are going to discuss in the next class, that is on Monday. In the meanwhile, enjoy your break, 2-day break, है ना? Break तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, and keep solving questions. And I would remind you once more is that please don't forget to do that weekly analysis as to how many questions, ठीक है ना? How many questions you have done in this week and if possible in the previous week, so that you are on your toes कि ठीक है मुझे इतना करना चाहिए था और इतना किया है मैंने. Something like what I would wish is that somewhere around 80 to 100 questions is what you should do in physics from a good source. गुड सोर्स को मैं दो में डिवाइड करता हूँ, हमेशा ही बताया होगा, फिर से बताऊंगा. बेसिक्स के लिए एचसी वर्मा और आगे के लिए आइदर डीसी पांडे क्वेश्चन कलेक्शन हमें और बीएम शर्मा, ठीक है ना? प्लस जो लोग फिटजी नारायण वगैरह ज्वाइन किए उनको तो असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल रहा है, तो लाइक इट कुड बी दैट कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट 100 or 80 क्वेश्चन दैट आई एम सेइंग. तो लाइक 80 to 100 क्वेश्चंस per week. Start off with HCV, एक राउंड HCV complete, then go on to FITG sheets, BM Sharma, DC Pandey book. These are generally the 2, 3, 4 places, 4 things that we generally refer to while solving questions, है ना? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. Enjoy the weekend. We will meet again on Monday for something new. We've just started the discussion on force on wire. From wire, we will then also shift to loops and all. So those are things that will be in the agenda in the next class. That is on Monday. Fine. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. We'll. Thank you, sir. Okay. Thank you बेटे. Thank you, sir. Okay बेटे. Thank you. Thank you, sir. बाकी Thank मैं you, एलन sir. का पूछ लूंगा एक बार, ठीक है ना? चलो. Okay बेटे. Thank you, sir.